व्याख्यान शुरू कीजिए। Good evening, everyone. So let's welcome to all of you for the today's session. Today we are conducting our third session of our course, Skin Disease and Homeopathy. And today's speaker is Dr. Deepak Sharma and Dr. Shilpi Arora. They both are taking this session, and you all don't require their intro as we introduced them earlier. So I request Sir and Ma'am to continue the session. Thank you, Dr. Shanvi. Yes, Dr. Shilpi, please proceed. I'm sharing the PowerPoint of the day. Yes. Mm, Hi, I'm so sorry. My laptop was giving a problem. That's why. No worries. Hi. So, good evening, everyone. Welcome you all to another exciting and informative session by OIAH, Orbit Institute of Applied Homeopathy. I hope you all would have gained some new knowledge and some new things you would have learned in the previous two sessions. Definitely, our aim is to give you the best. I know you all are educated enough and you all already know all these things. It's just a brush up of these things, and our main motive behind this is, as we have told in the previous sessions also, to gather all the doctors and all their information and all their queries at one ground, so that we all can benefit from each other's knowledge, whatever we have gained from our day-to-day practices. So in the previous two lectures, what we have done till now, in the first lecture, we all were given the introduction about the skin anatomy and physiology by Dr. Deepak. And in the previous session, I myself had given the introduction about the various skin lesions which we come across. That was a very vast topic to discuss. So today we are just concentrating mainly on one thing, that is pigmentation disorders. I know all of us would have come across with the pigmentation disorders, either solely as a case of a pigmentation disorder, or it could have been a case of some other disorder, and associated with that the pigmentation was there. So let us see what are the various reasons and causes of various pigmentation, and what are the various ways these pigmentation are expressed in our skin. So we all know that the color of the skin is mainly due to the brown pigment, which we call as melanin. And the pigmentation or the coloration of the skin is mainly dependent on how much amount of melanin we have in the skin. People who are having the pale skin, that is the lighter, the darker skin, they produce little melanin, whereas the one which are having a darker skin, they present with higher amount of melanin. And we all know that these pigment secretion might vary from person to person and even from age to age. And it might even vary with some kind of conditions in the body, like during pregnancy, when there is a excess of sun exposure. All these things will definitely impact how the pigmentation of the skin would be. Now, coming to the skin pigmentation disorders which we come across. These skin pigmentation disorder also affect people with respect to their age, with respect to what profession they belong to, and what are the various conditions, environmental factors they come across with. So in today's session, we'll be talking about what are the various types of pigmentation disorders. It can be lack of melanin, it can be excess of melanin, or it can be some other superimposed infections which are causing the deposition or reduction of the melanin. Next slide, Dr. Deepak.
Now, these skin pigmentation can be localized or they can be spreaded all over the body. And the changes that they cause to the skin are mainly, we categorize them as, either we call them as depigmentation, or we call them as hypopigmentation, or we call them as hyperpigmentation. There is a very minute line between few of the pigment disorders which we come across. So we should be very careful in judging which pigmentation disorder are we treating and we are gonna talk about. So depigmentation, when we come across with the cases, we should see that what kind of the pigmentation criteria is shown in the skin. So in depigmentation cases, we'll be seeing that there is loss of pigment and it makes the skin lose its natural color. Natural color, whatever that particular person is having. It could be a darker tone, it could be a lighter tone. So with respect to what their original tone of the skin is, with respect to that, if there is pigment loss, that is called depigmentation. Now here again, the pigment loss can be partial or it can be complete. It can be for a time being or it can be a permanent, complete loss of pigment in that particular area. So this condition we call as depigmentation. D term, as we all know, a prefix used for no or less. Now, again, another terminology we have is hypo. Hypo and hyper. Again, these prefixes are mainly used to tell hyper means excess, hypo means less, and hyper means excess. So same way here, hypopigmentation would be when there is low amount of melanin. So how does it differentiate with depigmentation? Depigmentation means there is complete loss of pigment. And hypo means there is melanin present, but it's present in a low amount as compared to what the natural skin is. So it creates a skin which is lighter than the normal color. Now, apart from the primary pigmentation disorders which we come across, hypopigmentation can also result from, not only it can be because of some pigmentation disorders related to the melanin, it can even occur when there is some injury. Some people, when they have injuries, especially deep-seated injuries like burns or some kind of deep ulcers have been produced, or there was some chemical exposure, or there was some kind of recurrent skin infections has happened because of either fungus or some other viral infections, it can lead to that particular area producing less melanin. And the tone of the color of that particular area will be less as compared to the other areas. Same way when we talk about hyperpigmentation. Hyperpigmentation means, as the term says, excess production of melanin. So here the skin will becoming darker than the usual tone. And this can be usually seen when there is exposure to some sunlight excess is there, or it can be because of some kind of medications or some kind of drugs which the person is taken, or it could be because of some kind of pigmented substances which they come across. So this can even be seen whenever there is a professional, we have to take the professional history of that person when we deal with these kind of pigmentation disorder. Because many times the pigmentation is seen, or depigmentation or hypo is seen whenever they are having some kind of a profession in which they have a recurrent chemical exposure. So first, let's talk about depigmentation in little detail. So depigmentation, as we spoke about, is a condition in which there is a complete loss of pigment. The skin here is not having a lighter tone. Here the skin is completely white. One of the conditions of depigmentation can be vitiligo. Similar to this, we can even say albinism is there. We can even say there is leukoderma. In all these cases, there is complete loss of melanin in that area. Now, for hypopigmentation, as I earlier told, it's a condition in which there is low amount of melanin. So the skin is lighter in color than usual, and it can be caused due to
some previous injury to the skin, like there can be a recurrent ulcer in that area, deep-seated ulcers, burn of higher grade, exposure to some chemicals, skin infection like virus and fungus, or it can be because of some inflammatory conditions after which the skin has healed, but it has left a permanent scar over there, and in that scar, the pigment is less. And there are few rare hereditary conditions in which again we can see hypopigmentation conditions. Now, same way, hyperpigmentation is usually when there is abnormally high amount of melanin, like we come across conditions like disorders that can cause inflammation due to drugs and exposure of sunlight. So first, we should categorize the case which we are getting into these three pigmentation disorder categories. After that, we will come across with the differential diagnosis. So now this is how these will present. So as we said that there is hyper, hypo, and depigmentation. This condition, the first case, is seen of the lady which is having the areas marked over here. These are darker patches. So this is a condition of hyperpigmentation. Hyperpigmentation very commonly seen as freckles, which we in Hindi call as jhaiyan. And not only freckles, but there are many other such disorders which we'll discuss in later on slides, which will lead to excess melanin deposition and can lead to such kind of conditions. This patchy lightened pigments we can see, which are little lighter tone than the general skin. This is called as hypopigmentation. And in the third case, you can see there is complete loss and the skin has turned white. So this is how the appearance of the person of hypopigmentation, depigmentation would be. Now, depigmentation again can be caused by a number of systemic conditions. So like today we are discussing in detail one of these of the disorders like vitiligo and few other like tinea. These are few disorders that we will concentrate our discussion on. So before going further, I would like to present one case so that we all will have a little more kind of a practical approach given to this. Dr. Deepak, can you go to the case slide? Then we'll come to these all. Yeah. So in my practice, there was one case which I would say was a very successful case of mine. And the person is still continuing the treatment with me. Around 1.5 years back, the patient had come to me, and the main problem the patient came along with was white patches on various parts of the body. And they were depigmented patches. After a thorough investigations, basically not investigation, a thorough history, I came across with the conclusion that the person is suffering from vitiligo. The main patches, the white patches which were mainly present were on his legs, and they were all scattered on the legs, on the face, on the hands, on the back. These were the main areas where his vitiligo patches were localized. Now, the patient's other issues when I asked a proper history was that the person was suffering from diabetes from 5 years. He had a mild starting case of umbilical hernia. Then he had prostatomegaly, enlargement of prostate, but that also was not something which was troublesome for him. When I saw the build of the patient, he was quite tall, slender. Weight was around 78 kgs and height was 5 feet 10 inches or 11 inches. The patient seems to be very frank with me, and but he was little suspicious every time asking me when I was taking the cases, whether will you be able to take care of such cases or not? Have you treated previously such cases? And then he also used some terms like, if you treat me, I'll be gifting you a lot of gifts. I'll be giving you many patients. All that he was talking about. When other vitals were taken, sleep was
he used to sleep early, he used to get early good sleep, but not very sound. He used to sleep as soon as he used to go on bed, he used to sleep within 5 minutes, but that was not a very sound sleep. He used to wake up after every 1 hour or something. And he was having some dreams also, which most of the time he said, I don't remember. Then, but I felt that he does not want to disclose his dreams, but he said he doesn't remember the dreams. Desires were of sweets, rich food items. Thirst was not that much. Um, Next slide, Dr. Deepak. Gastric, no issues, motion regular. Then I had asked him many kind of questions with him, which I could not disclose much of over here. So now the medicine which came to my mind was phosphorus. That was the first medicine that had come into my mind. Now, the reason why I had chosen phosphorus was that phosphorus patient, as what I remembered while we were having our college life, and there our lecturer had discussed phosphorus. Maybe phosphorus was his favorite medicine or something. He used to describe with every case phosphorus was the mentals. So mentals of phosphorus, when I remembered, was that the person was very charming, or the person used to talk a lot, the person used to be very enthusiastic, but very changeable. Changeable, like within few minutes, the patient used to shift to the other topics, and used to, like, one time he was very happy, the other time he became very sad. And they are very susceptible to the outside, whatever is happening outside. So I have noticed, when I have seen that case, that the person used to see every detailed thing in my clinic, and he used to get like little bit of a sound, he used to get startled, he used to feel like what's happening, why this is there. So he was like quite susceptible to all the external impressions. And he always wanted me, means these few things, when the patient came to me for 3 4 cases, then I visits, then I got to know that he always used to ask for some kind of sympathy. He always wanted me to tell that no, definitely you will get cured, definitely you will get cured. So some kind of a sympathy. So this inclined me to give him phosphorus, and along with that, I had given arsenic sulflavum, which also had quite similar kind of mentals. There were few times when the patient refused to answer few of my questions. That's why I thought of arsenic sulfate. Now, these two medications I had been continuing. Not arsenic sulflavum in 3x potency was something which was given quite regular to him. Phosphorus was given like 15 days once or monthly once sometimes, based on how I felt. And I would like to show you what results I had got in this thing. This is how the patient came with me on his face structure, and this is now his present. This is just few days back picture. The patient had actually on his back, all the vitiligo patches have completely disappeared. On the face also, a remarkable disappearance of the patches has been seen. And on the hand, on the legs also, you can say almost like 25 to 30% patches have been reduced. The case is still running, and I know till he gets completely cured, he will be continuing with me. So this is how the case was given. The main purpose why I presented this case was not to show that what I have treated. The main thing was that how we can take case, and how we should go ahead in the cases for dealing with the vitiligo or any such type of skin disorders. So not only emphasizing only on the localized symptoms, but dealing with the mentals, taking proper medical history, everything will definitely help in making the case successful. Now, I would ask Dr. Deepak to explain a little bit about vitiligo, because the case which we have discussed is about vitiligo.
So now let Dr. Deepak explain what vitiligo has been and what it is in a detailed manner. Dr. Deepak, over to you. थैंक यू डॉक्टर शिल्पी। जहाँ तक आपने एक केस प्रेजेंट किया इसके लिए तो बहुत तारीफ के काबिल है, क्योंकि बहुत सारे विटिलिगो के ऐसे पेशेंट हैं और जो पैथोलॉजीज कहती हैं कि विटिलिगो एक बार अगर हो जाए तो दोबारा से क्योर नहीं हो सकता। तो अभी विटिलिगो के बारे में और कुछ समझते हैं। जैसा कि आपने आज डीप पिगमेंटेशन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, और ऐसे केसेस को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सबसे कॉमन केस है और सबसे हर्टिंग केस है किसी भी स्किन डिजीज के लिए। एक तो विटिलिगो हो गया, एक सोरियासिस हो गया, ल्यूकोडर्मा। तो आज थोड़ा सा पता करते हैं कि आज विटिलिगो और एक्चुअली क्या चीज है, ये सारे डीप पिगमेंटेशन डिजीज ना। तो विटिलिगो ए डिजीज दैट कॉज द लॉस ऑफ स्किन कलर इन ब्लॉचेस, जैसा अभी डॉक्टर शिल्पी ने बताया कि ये डीप पिगमेंटेशन की एक डिजीज है। और जितनी भी हमारे पास जो अभी तक साइंटिफिक बुक्स हैं उसमें सबसे पहले जो नीचे लाइन आप देख रहे होंगे इसमें लिखा होगा कि ट्रीटमेंट may improve the appearance of skin but does not cure the disease। जितनी भी अभी तक मैंने किताब पढ़ी स्किन को लेकर के, जहाँ पर भी इंटरनेशनल थेरेपीज का यूज होता है, हर एक बुक में या हर एक जगह पर सिर्फ यही लिखा हुआ है कि ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं लेकिन इस डिजीज को क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ मेलानोसाइट्स हो जाता है। तो ये हमें सीखना जरूरी है कि हम होम्योपैथी में क्या करेंगे और जो इंटरनेशनल मेडिसिन है वो क्या करते हैं। ना विटिलिगो के बारे में कुछ था कि बहुत कॉमन है, मोर देन 1 मिलियन केसेस पर ईयर, ये इंडिया का डाटा है। इतने केसेस पर ईयर इस समय इंडिया के अंदर आ रहे हैं। ट्रीटमेंट कैन हेल्प बट दिस कंडीशन कैन नॉट बी क्योर्ड, अगेन सेम लाइन है। रिक्वायर्ड से मेडिकल डायग्नोसिस, लैब टेस्ट और इमेजिंग रेयरली रिक्वायर्ड। फिजिकल डिजीज है, जनरली जो सिम्टम्स हैं जो साइंस हैं सिर्फ उसी के आधार पर इसकी डायग्नोसिस बन जाती है, जनरली इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, किस वजह से बीमारी आई, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करानी जरूरी होती है। ना पहले समझते हैं कि आखिर है क्या। आपको मैंने जब मैं एपिडर्मिस के बारे में बता रहा था तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो एपिडर्मिस से लेकर के जितने भी हम लोग डीपली चलते चले जाएंगे, डिजीज का जो पेन है, डिजीज की जो हर्टिंग है वो उतनी ही ज्यादा डेप्थ होती चली जाएगी और जो पेन है वो उतना ही कम होता चला जाएगा, अगर आप सब लोगों को याद हो। तो जब भी हम एपिडर्मिस के ऊपर से एंटर करते हैं तो मेलेनोसाइट जो है उसके इसी लेयर में सेटल होते हैं जो स्किन के पिगमेंटेशन को देते हैं। ये जो पिगमेंटेशन ये सब बहुत सारी चीजों पर आधारित होती है। जनरली जेनेटिक्स पर आधारित होती है सबसे पहले तो, कि जेनेटिक्स क्या है। फिर उसके बाद जो सोशल है, आपका जो एरिया है, आपकी जो लोकेलिटी है, इन सब चीजों पे भी आपकी जो स्किन का कलर है वो डिपेंड करता है। मेलेनोसाइट स्किन, पूरी स्किन के अंदर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हेयर फॉलिकल के बाद, जिसको समझने में आज भी साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत धोखा खा रहे हैं। हर 5 या 6 साल के अंदर मेलानोसाइट्स की अपनी एक डेफिनेशन चेंज हो जाती हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो मेलानोसाइट है, अगर आप सिर्फ एक सेल की बात करेंगे तो जो आप देख रहे होंगे इसका जो न्यूक्लियस है ये ऐसे है। फिर उसके बाद जो इसके डेंड्राइट्स हैं वो सब निकले हुए हैं, और जो मेलेनिन है वो इसके सबसे रूट कॉज से निकलता है, और ये अलग अलग टाइप की पिगमेंटेशंस को जन्म देता है, जिसमें सबसे मेन पिगमेंटेशन जो है वो है मेलेनिन। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही पिगमेंटेशन हो, इसके अलावा भी और बहुत सारी पिगमेंटेशन होती है, लेकिन 99.9% जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ मेलेनिन का है, जिसकी वजह से हमारी स्किन की कलर रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसी मेलेनिन के आधार पर ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि स्किन का कलर कैसा होगा। लेकिन अगर ये पूरी सेल डेथ हो जाए, सोचो एक एपिडर्मिस के अंदर, फिर दोबारा इसी पे चलते हैं, एक एपिडर्मिस के ऊपर जहाँ सबसे ऊपर टॉप की लेयर है, फिर उसके बाद एक डीप लेयर आती है, यहाँ पे मेलानोसाइट, आप देख रहे होंगे कि ये जो मेलानोसाइट है सब डीप है, उसके बावजूद भी डैमेज हो गई। तो इसका कोई तो कारण रहा होगा। डर्मिस से अगर कोई इन्फेक्शन आती तो हेयर फॉलिकल भी डैमेज होना चाहिए था और बहुत सारी सेल्स डैमेज होनी चाहिए थी, लेकिन एक सिर्फ मेलानोसाइट पर क्यों असर आया, क्यों ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज हुई, या क्यों ऐसा हार्टिंग हुई जहाँ पे कभी हमें फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलती लेकिन विटिलिगो किसी पेशेंट में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा क्या हुआ होगा जो इस मेलानोसाइट के अंदर अंदर कोई प्रॉब्लम आई होगी। सेम अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो यहीं से इसका म्याज जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी आपको बात बता देता हूँ कि ये क्यों हुआ होगा। जनरली जब हम मियाजमेटिक बात करते हैं और विटिलिगो की बात करते हैं तो विटिलिगो का जो जनरली मियाज में आता है वो साइकोटिक और सिफिलिटिक, जिसमें डोमिनेंसी जो है वो सिफिलिटिक की आती है।
क्योंकि कोई चीज डैमेज हो रही है, वो भी डीपर इनसाइड हो रही है। अगर एपिडर्मिस की सबसे ऊपर की लेयर में बात करेंगे, कोई डिजीज है, उसके बाद उस लेयर में कोई डिजीज नहीं है, फिर उस लेयर में कोई डिजीज नहीं है, तो म्याज जो है वो सोरा टू साइकोसेफ्रेटिक मूव होता है। सबसे ऊपर की लेयर में सोरिक, फिर उसके जितना भी डीप चलते चले जाएंगे, सेफ्रेटिक टेंडेंसीज उतनी ज्यादा आती चली जाएंगी, इसीलिए पेशेंट जो है पेनलेस होता चला जाता है। सो विटिलिगो इज कंप्लीटली पेनलेस डिजीज। विटिलिगो के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हम लोगों को अंडरस्टैंड करने में कि विटिलिगो क्या है और ल्यूकोडर्मा क्या है। तो आज एक बहुत छोटी सी कॉमन सी बात बता देता हूँ कि विटिलिगो इज कॉज्ड बाय द मेंटल ट्रॉमा एंड ल्यूकोडर्मा इज कॉज्ड बाय द फिजिकल ट्रॉमा। समझे? विटिलिगो के जितने भी कॉजेज हैं, ज्यादातर साइंस में आज भी विटिलिगो को किसी मेंटल ट्रॉमा या किसी स्ट्रेस की उसका कॉज समझा जाता है। जबकि जो ल्यूकोडर्मा है वो फिजिकल ट्रॉमा की वजह से होता है। जैसे किसी को अगर कोई कट लग गया, उसके बाद डिपिगमेंटेशन हो गई, वो व्हाइट कलर का पैचेज लेकर के आया, तो ये ल्यूकोडर्मा है। और अगर वो अननोन कॉज के थ्रू, मतलब उनको कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई है, फिजिक कोई कट नहीं हुआ है, उसके बाद भी डिपिगमेंटेशन हुई है, दैट इज कॉल्ड विटिलिगो। विटिलिगो के लिए मैंने अभी पहले बताया, क्योर इज लिमिटेड और नॉट पॉसिबल। जबकि ल्यूकोडर्मा के लिए क्योर मे बी पॉसिबल, वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेलेनोसाइट ल्यूकोडर्मा में नहीं होता है, विटिलिगो में कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेलेनोसाइट होता है। तो दोनों चीजों में यहाँ एक बहुत छोटा सा फर्क है। ल्यूकोडर्मा सिर्फ लोग ये मान के चलते हैं कि ल्यूकोडर्मा पहले हुआ फिर विटिलिगो हुआ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे डेफिनेशंस में हमें भी कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते थे कि अगर स्कैटर्ड स्पॉट्स है डिपिगमेंटेशन के, तो वो ल्यूकोडर्मा हो गया, और एक साथ मिले हुए पैचेस है तो विटिलिगो हो गया, जबकि ये डेफिनेशन बिल्कुल रॉन्ग है। तो ल्यूकोडर्मा वहाँ है जहाँ पे आपको फिजिकल ट्रॉमा मिलता हो। पेशेंट आकर के खुद कहता है कि डॉक्टर साहब एक बार मेरे यहाँ कट लग गया था, यहाँ चोट लगी थी, उसके बाद से एक सफेद दाग हो गया। दैट इज कॉल्ड ल्यूकोडर्मा। बिल्कुल फिजिकली बिल्कुल क्लियर कट डायग्नोसिस है। अगर पेशेंट ने जरा सा भी ये बोल दिया कि मुझे उस चोट लगने के बाद हुआ, चाहे वो सेम जगह पे हो चाहे दूसरी जगह पर, तो उसको जनरली ल्यूकोडर्मा कंसिडर किया जाता है। अगर कोई अननोन कॉज है, जहाँ पे हमें लगता है कि कोई भी कॉज नहीं है, पेशेंट आकर कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे परिवार में किसी को नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे हो गया, मेरे को कोई बीमारी भी नहीं हुई, स्टिल डिपिगमेंटेशन हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड विटिलिगो। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नाउ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में मैंने अभी जैसे बताया कि इमोशनल स्ट्रेस, प्रेगनेंसीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ऐसे फैक्टर्स अब तक लगभग विटिलिगो में ओकेजनली स्टार्ट एज मल्टीपल हेलो नेवी, और इसके 31 केसेस अभी मैं आपको बताऊंगा हेलो नेवीज क्या होती हैं और वो विटिलिगो में कैसे कन्वर्ट होती हैं। इसी के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है लॉस ऑफ हेयर कलर, ऐसी बहुत सारी स्किन की डिजीज जो इसमें हेयर का कलर जो है वो एकदम से डिमिनिश हो जाता है। प्रीमेच्योर हेयर गियरिंग हैज डिस्क्राइब्ड बट द एसोसिएशन इज स्टिल अनक्लियर। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी अभी तक भी डायग्नोसिस और स्टिल विटिलिगो की कोई कंफर्म डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बता सकता है कि इसकी डिजीज विटिलिगो कैसे आई होगी। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे सेंसरी हियरिंग इम्पायरमेंट, सनबर्न इन विटिलिगो लीजन मे बी ए प्रॉब्लम। बहुत सारे एविडेंसेस है जो बहुत सारी चीजें शो करती हैं, और ये रेस और जो सिटीज हैं, जो कंट्रीज हैं, या हमारी लोकेशंस पर भी आधारित होता है कि विटिलिगो कितना होगा कितना नहीं। नाउ विटिलिगो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम किस टाइप के विटिलिगो को ठीक कर सकते हैं, किस टाइप का विटिलिगो है, और हमें किस टाइप के विटिलिगो पर अच्छे ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, किस ट्रीटमेंट को हमें शायद मना करना चाहिए, ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होती है। आप लोगों को बता दूं कि मैं जब बीएचएमएस कर रहा था, तो बीएचएमएस के दौरान हमारे एक सर्जन हुआ करते थे जो हमें सर्जरी पढ़ाते थे। तो वो हमेशा होम्योपैथी की बहुत तारीफ करते थे। लेकिन एक बात कहते थे कि होम्योपैथी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन होम्योपैथ के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर उनके सामने एक पत्थर रख दो और घुमाओ और डॉक्टर साहब वो पूछो कि डॉक्टर साहब ये गायब हो जाएगा कि नहीं, तो एक होम्योपैथ ये जरूर कहता है कि वो पत्थर गायब हो जाएगा, बस आप दवाई लेते रहो, बिना ये समझे कि कौन सी डिजीज क्योरेबल है, कौन सी डिजीज क्योरेबल नहीं है, कौन सी डिजीज ट्रीटेबल है, कौन सी ट्रीटेबल नहीं है। इन सबको बिना जाने हम लोग अननेसेसरी बहुत सारे ऐसे काम करते रहते हैं जिससे कभी कभी होम्योपैथी को बदनाम होना पड़ता है। तो प्लीज मैं ये चाहता हूँ कि हमारी इस क्लिनिकल क्लासेस से आपको वो सब कुछ सीखने को मिले कि हमारी कहाँ लिमिटेशन है और कहाँ पे हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। तो टाइप्स पे चलते हैं। नंबर वन, जनरलाइज विटिलिगो। जनरलाइज विच इज मोस्ट कॉमन टाइप when macules appear in various places of body।
जनरलाइज विटिलिगो में आपको पैचेस कहीं पर भी मिल सकते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट में मिल सकते हैं, और ये एकदम अचानक आता है और बहुत जल्दी से फैलता हुआ होता है, इसको जनरलाइज विटिलिगो बोलते हैं। सेगमेंटल विटिलिगो, जैसे सिर्फ टंग पे एक एरिया के अंदर विटिलिगो आया, पैचेज आया, बहुत सारे पेशेंट आकर के कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पास के 3-4 साल हो गए, 10 साल हो गए, और सिर्फ इसी एरिया पे वाइट पैचेज है, इसके अलावा ये कहीं पे भी नहीं फैल रहे हैं। तो इसको जनरली हम लोग सेगमेंटल विटिलिगो कहते हैं। ये सेगमेंटल विटिलिगो जनरली जनरलाइज नहीं होता है, लेकिन जिस भी एरिया में होता है पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा हर्टिंग होता है, क्योंकि पेशेंट को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं ये पूरे में ना फैल जाए। तो विटिलिगो के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर उसका एक छोटा सा भी स्पॉट आता है, तो हर एक पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को या उसके पेरेंट्स को ये लगने लगता है कि ऐसा ना हो कि ये पूरे शरीर में फैल जाए। ये एक सबसे बड़ा फियर का फैक्टर है, जो हमें हमेशा रिपर्टरी में इंक्लूड करना चाहिए मेडिसिन देते समय। इस फियर को भी हमें इंक्लूड करना है कि फियर जो है पेशेंट के अंदर ज्यादा है या पेशेंट के अटेंडेंट में ज्यादा है। नेक्स्ट इज म्यूकोसल विटिलिगो। जैसा अभी डॉक्टर शिल्पी ने एक केस बताया, तो आप देख रहे होंगे कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके आसपास जो भी विटिलिगो है, इसका मतलब ये नहीं कि विटिलिगो के पैचेस कहीं और नहीं आएंगे। मिक्स्ड हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर मिल रहा है, जैसे लिप्स है, जैसे नोज है, अगर यहाँ पर या जेनिटल्स में है, अगर ऐसी जगह पर आपको सिर्फ स्पॉट्स मिल रहे हैं, तो इसको म्यूकोसल विटिलिगो बोलते हैं। नेक्स्ट इज फोकल। फोकल में मैंने जैसे बताया कि एक सेगमेंटल होता है। सेगमेंट का मतलब होता है कि ऑर्गन के किसी या किसी बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट में, लेकिन फोकल का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही एरिया में है। पिछले 4 साल से अगर कोई पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब बस इतना ही है, एक ही जगह पर रुका हुआ है, इसके अलावा कहीं नहीं जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द फोकल विटिलिगो। ये रेयर टाइप होते हैं। जनरली ऐसे केसेस में हमें ट्रीटमेंट जो है वो पूरा लिमिटेड करना चाहिए। अगर हमारे पास पेशेंट आकर के ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे 10 साल हो गए, मैं इसका काफी ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, यहाँ पे ना तो ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है, तो हमें पेशेंट को काउंसलिंग से समझाना चाहिए कि ये फोकल विटिलिगो है, जनरली ठीक नहीं होते। इनकी खास बात यह है कि ये एक जगह होकर के जनरली रुक जाते हैं। मतलब जैसे अगर मेलेनोसाइट एक पर्टिकुलर एरिया से अगर गायब हो गई, तो जनरली चांसेस नहीं होते कि वो कहीं और जाएगा। तो हमें पेशेंट को यहाँ काउंसलिंग करनी चाहिए कि आप इससे चिंता ना करो, अगर वो बढ़ेगा भी तो 10 साल में मुश्किल से मुश्किल 1 mm या 2 mm, सिर्फ इतनी हल्की रफ्तार होती है। तो उसके लिए हम उसको अननेसेसरी मेडिकेशन करें, ये अच्छा नहीं है। बस कॉस्मेटिक रीजन है कि हाँ, अगर पेशेंट को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपनी तरफ से कुछ भी लोकल या कोई भी आपकी जो मेडिसिन समझ में आ रही है वो एक बार ट्राई कर सकते हो, लेकिन जनरली फोकल विटिलिगो में रिस्पॉन्सेज जो है वो बहुत कम मिलते हैं ना। ट्राइकोम विटिलिगो वो विटिलिगो है जहाँ पर ऐसे एरिया में होता है जहाँ पर बाल इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे हेयर फॉलिकल जो है वो इन्वॉल्व होता है। Trichome, which means that there is a white or colorless center, that an area of lighter pigmentation and then an area of normally colored skin. Generally, जहां पर भी हेयर्स हैं उसके साथ साथ हेयर फॉलिकल भी डैमेजेस होते हैं। ट्राइकोम का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हेयर से रिलेटेड। नाउ यूनिवर्सल विटिलिगो, ये एक पिक्चर मुझे बहुत अच्छी फाइंड आउट हुई। सारी पिक्चर जितने भी है मैंने इसमें कॉपीराइट के इशू की वजह से हमने सब जगह लिखा हुआ है कि जो इमेजेस गूगल की हैं उनमें हमने लिखा हुआ है, और जो इमेजेस हमारी अपनी है उनमें भी हमने अपने कॉपीराइट के साइन लगाए हुए हैं। यूनिवर्सल and another rare type of vitiligo, and one in which more than 80% of the skin of the body lacks pigmentation. ये बहुत कॉमन है। इसकी जो स्प्रेडिंग है वो अभी एकदम से बहुत ज्यादा हो रही है, हालांकि किताबों में अभी भी इसको रेयर लिखा हुआ है, लेकिन यूनिवर्सल विटिलिगो इस समय बहुत कॉमनली फैलता चला जा रहा है। इसकी बहुत सारी वजह है, डाइट को लेकर के भी, बहुत सारे हार्मोन्स को लेकर के भी, बहुत सारे बच्चे आजकल जिम जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्टेरॉइड लेते हैं, वो भी अपने आप में एक कॉज है। अननेसेसरी कोई मेडिकेशन करते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, वो भी अपने आप में एक कॉज है। इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो ये कुछ टाइप्स थे जो विटिलिगो के, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का विटिलिगो हम ठीक कर सकते हैं और कौन कौन सा नहीं कर सकते। नाउ कॉजेज की बात आती है। विटिलिगो इज ड्यू टू लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानोसाइट। जैसे मैंने अभी बताया कि ये या तो लॉस होता है या तो कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन हो जाता है मेलानोसाइट का। आप सब लोग मुझे एक बात का जरूर जवाब देंगे कि एपिथेलियल की एक ही लेयर के अंदर एक ही सेल के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो एकदम से लॉस होने लगी, जो एकदम से डिस्ट्रक्शन में आने लगी। यही बस होम्योपैथी का फायदा है, क्योंकि होम्योपैथी हमें वो बताती है जो दुनिया की कोई भी साइंस नहीं बताती। आगे चलते हैं। जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, contribute to 80% of the vitiligo risk.
इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है 20% इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से भी विटिलिगो कॉज हो रहा है। जब मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं या जब मैं कभी लेक्चर लेता हूँ तो जनरली सब लोगों को सारे डॉक्टर्स ही कहते हैं कि जंक फूड जो है वो नहीं खाना चाहिए। राइट। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जो ये नहीं कहता होगा कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो आप में से मुझे कोई एक बात बताएगा कि क्योंकि आप भी एडवाइस करते हो कि जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए। कोई भी जवाब दे। अपना माइक ओपन कर सकते हैं। डाइजेस्ट नहीं हो पाता सर, वो कैलोरीज नहीं देता। गुड। और गुड अभिषेक, और कोई? और एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये जो विटिलिगो में हम जो जैसे नींबू पानी मना कर देते हैं या खटाई हम्म मना कर देते हैं, कई पेशेंट सिर्फ आके कहते हैं कि हमें नींबू अच्छा लगता है, तो हम्म। हम उसको कैसे सब्स्टिट्यूट करें उनकी अभी आइए वो डिजायर्स या। अभी अभी हाँ। अभी उस बारे में मैं डाइट पे आऊंगा। पहले जरा जंक फूड की बात कर लें कि ज्यादातर यहाँ पर जितने भी हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, तो जनरली हम लोग क्यों मना करते हैं कि आप जंक फूड ना खाओ। इसके बारे में बताया मुझे को। क्योंकि देखो आजकल के जितने भी पेशेंट हैं ना वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। उन सबको एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। आप लोग को बताना पड़ेगा, आज के टाइम में हमें बताना पड़ता है कि जंक फूड क्यों ना खाएं। तो देखिए आपको सीधी सी सर एक बात जंक बोल। सर जी हाँ जी जी मैंने सर, बताइए। जंक फूड में कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी यूज होते हैं, केमिकल्स जो हम्म, बॉडी में साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल ठीक है। देखिए जंक फूड की बात हम जब करते हैं तो हम लोगों को जो फर्स्ट वर्ड है इसी पे ध्यान देना चाहिए। जंक का मतलब ही है कूड़ा, है ना। जब उसमें लिखा है कि वो कूड़ा है तो हमें पहली बात तो खाना ही नहीं चाहिए। और डॉक्टर मीनू ने बिल्कुल सही जवाब दिया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव हैं। जब आप इन प्रिजर्वेटिव्स की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई चिप्स खाना है, आपको कोई बर्गर खाना है, आपको कोई पिज्जा खाना है या आपको कोई भी पैकेट फूड खाना है, तो अभी 2014-15 से एक अच्छी बात होने लगी है कि आपको केमिकल कंपोजिशन लिखनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। पहले क्या होता था कि केमिकल कंपोजिशंस में कुछ एक पर्टिकुलर चीजें लिखते थे और बाद में लिखते थे अदर्स। लेकिन अब गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, वो बताती है कि आपको क्या क्या लिखना है और आपको ये मैंडेटरी हो गया है कि आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। आप प्रिजर्वेटिव कौन सा डाल रहे हो और प्रिजर्वेटिव्स में कौन कौन से केमिकल यूज कर रहे हो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो प्रिजर्वेटिव है, कभी आप कोई भी अंकल चिप्स का पैकेट, कोई भी आप किसी भी पैकेट फूड का पैकेट उठा करके देखो और उसमें जो जो केमिकल डले हुए हैं आप एक बार सिर्फ उनको स्टडी करो नेट पे, आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि माइग्रेन के कॉजेज क्या हैं, आप विटिलिगो के कॉजेज क्या हैं, ऑटो इम्यून डिजीज के कॉजेज क्या हैं। तो इसीलिए सबसे पहला वर्ड ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि जंक मीन्स कूड़ा। तो जब वो कूड़ा फूड है ही तो फिर तो इसको हमें खाना ही नहीं चाहिए। इससे आगे तो किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं। केमिकल कंपोजिशन तो मैं साइंटिफिक लोगों को समझाता हूँ जो साइंस पढ़ते हैं, लेकिन जो हिंदी हर लोग जानते हैं, तो जंक का मतलब ही कूड़ा है तो हमें वो नहीं खाना चाहिए। तो एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है। तो ऐसी बहुत सारे कॉजेज हो गए हैं जो हम लोगों को शायद दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारी ऐसी बहुत सारी अनगिनत बीमारियों के अपने आप में कॉजेज हैं। और कॉजेज में जैसे मैंने बताया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, न्यूरोजेनिक फैक्टर्स, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, मेलानोसाइट का अपने आप डिस्ट्रक्शन हो जाना, जिसकी अभी तक भी डेफिनेशन साइंस के पास नहीं है। लेकिन साइंस ये लिखती जरूर है कि फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस, बिकॉज none of the explanation seems to completely account for the condition, it's possible that a combination of these factors is responsible for vitiligo. होम्योपैथी इस फिजिकल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस के बारे में आपको जरूर बता देगी अगर आप रिपोर्टरी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं तो। इसी बारे में भी बात करते हैं। और बहुत सारे कॉजेज हैं। अगर इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें CD8, जो CD8 सेल्स हैं ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो साइटोटॉक्सिक सेल्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो मेलानोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उससे मेलेनिन का प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। पूरी पैथोफिजियोलॉजी इसलिए जानो क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आप सिर्फ पढ़ सकते हो, लेकिन इनका प्रैक्टिकल यूजेस या मेडिसिन सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है। तो हम लोग उस काम पे चलते हैं जहाँ पे हमें मेडिसिन को सेलेक्ट करना है, मतलब हमें कैसे देखना है।
नाउ, विटिलिगो की कॉम्प्लिकेशन क्या है? विटिलिगो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसकी जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, सॉरी ये इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है, सॉरी सॉरी, सॉरी यहाँ के हेडिंग मेरी गलती हो गई है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है। तो जनरली विटिलिगो की जो डायग्नोसिस है वो हमेशा क्लिनिकल डायग्नोसिस बनती है, मतलब आप सिर्फ पैचेस को देख करके पता लगा सकते हैं विटिलिगो किस टाइप का है, जैसे मैंने कुछ पिक्चर्स में पहले दिखाया। एक वुड लैम्प में एग्जामिनेशन होता है, वुड लैम्प एक यूवी रेज का एक लैम्प होता है, जिसको अगर आप उसके सामने ले जाते हैं तो एक फ्लोरेसेंस देता है किसी भी ऐसी पिगमेंटेशन में जो या तो हाइपर पिगमेंटेशन वाली है या डिपिगमेंटेशन वाली है, तो उसकी एक लाइट अलग क्लियर नजर आती है। तो एक छोटा सा टेस्ट है, जनरली पहले बहुत यूज होता था, लेकिन अभी तो क्लिनिकल डायग्नोसिस से हमें कंफर्म पता लग जाता है कि ये विटिलिगो है या यूरिकोडर्मा है। हिस्ट्री के आधार पर भी हम लोग डायग्नोसिस बना सकते हैं। डर्मेस्कोपी एक अलग टेस्ट है, ऐसी स्किन की बायोप्सी जो बहुत ओकेजनली की जाती है, बहुत ही रेयर केसेस में, जहाँ किसी को सिर्फ रिपोर्ट के बारे में संबंध रखना हो या कहता हो कि हमें कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस बना करके दो, जनरली वहीं स्किन बायोप्सी का यूज किया जाता है। कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जहाँ पे हमें ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि ऑटो इम्यून डिजीज अगर कोई हो या सिर्फ विटिलिगो भी आया तो उसके पीछे कोई और भी तो कारण नहीं है, कोई वाइटामिन तो कम नहीं है, कहीं थायराइड तो नहीं है, कहीं इसके ऐसी कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रही बॉडी के अंदर जिसके अंदर स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन पहुंच रही हो, वो मेलानोसाइट को डिस्ट्रॉय कर रही हो। तो हमें जो रूटीन चेकअप है जनरली के सिर्फ वो कराना चाहिए, लेकिन इससे कहीं भी विटिलिगो की डायग्नोसिस नहीं बनती। नाउ, विटिलिगो की कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, जैसे मैंने अभी हेलो नेवियस के बारे में बताया। तो इसमें आप देखेंगे कि ये पिक्यूलर एक स्पॉट है बी पिगमेंटेशन का, जिसके बीच में एक रेड स्पॉट है, इसको हेलोनेविस कहते हैं। ये विटिलिगो नहीं है। जहां भी आपको विटिलिगो के ऐसे पैचेस मिलेंगे जिसके बीच में कोई भी रेड पैक्यूल या कोई भी मैक्यूल अगर मिलेगा, तो दैट इज नॉट ए विटिलिगो, दैट इज दिस इज नॉट ए ल्यूकोडर्मा। जनरली एक या दो पैचेस होते हैं, और ना इनके बहुत ज्यादा साइजेस बढ़ते हैं और ना ये बहुत ज्यादा जल्दी से रिडक्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेलेनिन इनमें भी जनरली हो जाता है। नेवियस एनेमिकस, इसमें व्हाइट पैचेस के साथ जो कैपिलरी ब्लड है वो दिखाई देगा। तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई व्हाइट पैचेस है लेकिन उसके सराउंडिंग में कहीं कैपिलरीज का डैमेज है, जनरली वो विटिलिगो नहीं है, नेवियस एनेमिकस है। ऐसी नेवियस पिगमेंटोसस, दैट इज, ये बहुत ही कॉमन है, हमें ज्यादातर नेक पे मिल जाता है, हमें बैक पे मिल जाता है, बहुत सारे पेशेंट आकर के कहते हैं। इससे बहुत कॉमनली कंफ्यूजन होता है कि सर ये कोई सफेद दाग की बीमारी में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? तो बहुत कॉमन है, हमें जनरली प्रैक्टिस में मिल जाता है। और हमें इसमें जब भी कभी हमें इसके लिए काम करना है तो हमें हमेशा हमेशा कैल्शियम कैल्शियम हमें टेस्ट करा लेना चाहिए, हमें विटामिन डी का टेस्ट करा लेना चाहिए, और जनरली स्टूल रूटीन का एग्जामिनेशन कराना चाहिए, कभी कभी किसी वॉर्म की वजह से भी ऐसा हो जाता है। पाइबर्डिज्म, ये एक बहुत कॉमन डिजीज है जो विटिलिगो को लगभग लगभग रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इसका आधा हिस्सा हेयर्स में होता है और आधा हिस्सा स्किन में, थोड़ा कम मिलता है प्रैक्टिस के अंदर। लेकिन फिर भी मैंने शायद पिछले 4 या 5 सालों के अंदर दो या तीन केसेस देखे होंगे जो इस टाइप के हैं, जिसको हम शुरुआत में शायद मैंने भी इसको विटिलिगो समझा था, लेकिन मैंने उसको 2 या 3 दिन के अंदर अपने एक फ्रेंड से क्लियर करके ये पता करा कि नहीं यार, ये विटिलिगो नहीं है, एक ऐसी डिजीज है जो सिर्फ हेयर के आसपास होती है, जिसमें आधे हेयर इन्वॉल्व होते हैं और कुछ टाइप में स्किन इन्वॉल्व होती है। ये हेड के बैक पे भी हो सकता है, फ्रंट में भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, जनरली हेड के ऊपर ही पाया जाता है। तो इसमें हमें हमेशा ध्यान रखना है, जैसे आप देख रहे होंगे कि अगर आईब्रोज है तो आईब्रोज में कुछ हिस्से स्किन के इन्वॉल्व होंगे और कुछ हिस्से जो हेयर है उसके इन्वॉल्व होंगे, तो ये भी एक मिसडायग्नोसिस हो जाती है विटिलिगो की ना। पिगमेंट्री मोजेइकम, ये जेनेटिक डिजीज है, आपने देखा होगा इसके केसेस भी मुझे शायद एक या दो मिले हैं। वो बैक में कुछ ऐसे स्पॉट्स लेकर के आता है जिसमें सब पेशेंट को सिर्फ एक ही डर रहता है कि डॉक्टर साहब ये कहीं सफेद दाग दाग वाली तो बीमारी नहीं, इंडिया के अंदर नहीं, ये पूरी वर्ल्ड के अंदर सबको ये फियर है कि अगर एक बार व्हाइट वाली बीमारी आ गई या व्हाइट पैचेस की बीमारी आ गई तो सब लोगों को यही फियर रहता है कि हमारी बॉडी पूरी व्हाइट ना हो जाए। तो ये कि फियर है जो बहुत कॉमन है, जिसको हमने मेडिसिन में इंक्लूड करना है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो ये जेनेटिक डिजीज है। सबसे पहले हिस्ट्री लेनी है कि आपका कहीं कोई जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, पूरी जेनेटिक हिस्ट्री जो है वो प्रॉपर लीजिए। और जनरली इनका जो सिम्टम है कोई चेंज नहीं होता, जहां पर है बिल्कुल वहीं रुक जाएंगी।
ना कोई स्प्रेड होती है और ना ही कभी भी एज के साथ साथ कुछ मिलीमीटर से बढ़ जाए तो बढ़ जाए, वरना पर इसके अंदर कोई भी सिम्टम नहीं आता। नाउ प्रोग्रेसिव मैकुलर हाइपरमेलेनोसिस, ये भी बहुत कॉमन है, ये भी आपको प्रैक्टिस में मिल जाएगी। जब भी कभी ऐसे पेशेंट आते हैं ना, तो आप हमेशा सबसे पहले तो उनके सिर्फ एक ही सिम्टम पे काम करना है, दैट इज फियर। मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको हर एक मेडिसिन के अंदर, अगर आप मेरा हिंट समझ गए होंगे, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जितने भी विटिलिगो या जितने भी व्हाइट पैचेस वाली बीमारी है, उसमें सबसे ज्यादा जो मेडिसिन काम करने वाली है वो सिर्फ वही मेडिसिन है जिनके अंदर फियर जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाहे वो सोशल फैक्टर का हो, चाहे वो पेरेंटल का हो, चाहे वो पार्टनर का हो, चाहे वो आपके फ्रेंड का हो, सबसे कॉमनेस जो है ऐसे व्हाइट पैचेस के जनरली जितने भी केसेस मिलेंगे, ज्यादातर डिप्रेस मिलेंगे। सिर्फ इस वजह से कि शायद मैं कहीं मुझे कोई देख ना ले। अगर कोई मुझे देख लेगा तो वो मेरे लिए क्या सोच रहा होगा। मुझे शायद, अगर आप मुझसे परसेंटेज में पूछेंगे, तो 2 या 3% ही केसेस ऐसे मिले होंगे जिसमें किसी भी टाइप का कोई फियर नहीं था, जिसमें किसी भी टाइप का अपने स्पॉट्स को लेकर के कभी वो डॉक्टर के पास नहीं गए, उनके किसी पेरेंट ने कह दिया या किसी ने कह दिया कि भाई डॉक्टर दीपक शर्मा बहुत अच्छे हैं या डॉक्टर शिल्पी बहुत अच्छी है, आप एक बार इनको जाकर के दिखा लो। सिर्फ 2 या 3% ऐसे केसेस हैं। इसके अलावा जितने भी केसेस हैं सब में फियर कहीं ना कहीं मार्क होता है, तो आपको मेडिसिन के अंदर ये सबसे प्राइम सिम्टम है जो खोजना है। इडियोपैथिक गटेड हाइपोमेलेनोसिस बहुत कॉमन है, आपको देखते होंगे हाथों पे पैचेस लेकर के आते होंगे। ये एज रिलेटेड डिजीज भी है। एज जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे भी मेलेनोसाइट्स कुछ जगह से हम कम होती चली जाती है या डिस्ट्रॉय होती चली जाती है, लेकिन ये विटिलिगो नहीं है, बेनाइन है, बहुत ही कम होती है, ज्यादातर ओल्ड एजेस में अपने आप आती है, और कोई सिम्टम किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पेशेंट का एक ही सिम्टम होता है, डॉक्टर साहब ये बेकार लग रहा है देखने में बात, दैट्स इट। इसके अलावा जनरली कोई सिम्टम पेशेंट नहीं प्रेजेंट करता ना। जब ट्रीटमेंट की बात आई, तो मैंने पहले भी कहा कि देयर इज नो क्योर फॉर विटिलिगो एंड ट्रीटमेंट इज ऑफ्टन अनसेटिस्फैक्टरी। द एम इज टू स्टॉप प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, सबसे पहले स्टेबलाइजेशन करना है, एंड टू अचीव सेटिस्फैक्ट्री रिपिगमेंटेशन। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज सबसे मेन लाइन है जो मैं आपको बिल्कुल कंक्लूजन बता रहा हूँ। ट्रीटमेंट इज मोस्ट सक्सेसफुल ऑन द फेस एंड ट्रंक। इस बात को ध्यान रखना। जब भी कभी विटिलिगो या ल्यूकोड्रामा के केसेस आएंगे, और ऐसे केसेस आएंगे जो फेस पे हैं, ट्रंक पे हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। जबकि जो हैंड्स हैं, फीट्स हैं, एंड एरियाज विद वाइट हेयर रिस्पॉन्ड वेरी पुअरली। ये जो लाइन है ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपने मेडिसिन देने में कहीं गलती करी, या आपने ऐसा लगा कि कोई सिर्फ सिम्टोमेटिक बेस्ट चले हैं, या आपकी कोई पोटेंसीज गलत है, या आपको उसको पोटेंसी देने का तरीका गलत है, तब भी आप शायद फेस और ट्रंक पे भी ठीक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें मेडिसिन को देते समय उसका टाइम ध्यान रखना है, उसका पोटेंसी ध्यान रखनी है, उसका रिपीटेशन ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को ये समझा के चलो कि सबसे पहले आपके फेस और ट्रंक के ठीक होंगे स्पॉट्स, उसके बाद हम हैंड्स और फीट्स को देखेंगे। तो जनरली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, कि स्किन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये विजिबल है। रोज पेशेंट देखता है कि आज मेरा स्पॉट बढ़ा के नहीं, रोज वो देखता है कि आज मेरे को स्पॉट जो है कैसा दिख रहा है। बहुत सेलिब्रिटी लोगों को लेकर के आते हैं कि डॉक्टर साहब आज तो हमें बहुत लाल लगा, लेकिन कल हमने बहुत सफेद था, कल हमने देखा तो वो थोड़ा येलो था। तो उसको डेली देखते हैं। तो डेली देखने की वजह से होता क्या है कि पेशेंट जो है वो खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, और हम लोगों को भी कंफ्यूज करते हैं। पेशेंट आकर के बताते हैं, डॉक्टर साहब हमें ऐसा ऐसा हुआ और हमारे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि उनको लगता है कि डॉक्टर जो होम्योपैथ है वो हिस्ट्री तो लेगा ही, तो क्यों ना हिस्ट्री को मॉडिफाई कर लो, जल्दी मेडिसिन पकड़ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें जब भी पेशेंट अपने सिम्टम को मॉडिफाई कर रहा होगा या वो झूठ बोल रहा होगा, तब भी हमें पकड़ना है कि मेडिसिन क्या है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि पेशेंट, अगर आप जल्दी ठीक होने के लिए पेशेंट अपने सिम्टम्स को मॉडिफाई कर रहा है या उसमें कुछ झूठ बोल रहा है, तो भी आपको ये पकड़ में आना चाहिए कि आखिर उस मेडिसिन तक कैसे पहुंचेंगे जहाँ पे वो झूठ बोलता है या अपने पेशेंट सिम्टम्स को मॉडिफाई करता है। जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो एक्रोनाइट से लेकर सल्फर तक मैंने देखा है कि कोई भी मेडिसिन जो भी सेलेक्ट हो जाए, सब काम करती हैं और बहुत अच्छे से काम करती हैं। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं
जो रेस्पॉन्ड ना करती हो, बस आपको उसकी पोटेंसीज पे ध्यान देना है, आपको उसकी रिपीटिशंस पे ध्यान देना है, और आप वो किस समय दे रहे हो ये ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सॉरी। नो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्यों जरूरी है? आप कितना भी इस पेशेंट को समझाओ, विटिलिगो के पेशेंट को, कि आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट को सिर्फ इतना ही लगा रहता है कि डॉक्टर साहब अगर ये ठीक नहीं हुआ तो या तो मैं समाज में नहीं रह पाऊंगा, या मुझे समाज क्या कहेगा। और आप लोगों को बता दूं कि विटिलिगो जैसी बीमारियां आज से कुछ साल पहले तक इतनी बुरी बीमारियां मानी जाती थी, अब तो थोड़ी एजुकेशन आ गई है, सब लोग थोड़े अवेयर हो गए हैं। नहीं तो इसको छुआछूत की या कंटेजियस बीमारी के अंडर में लाया जाता था। जिन लोगों को व्हाइट पैचेस होते थे उन लोगों के साथ खाना नहीं खाया जाता था, उन लोगों के साथ कभी जो कपड़े हैं वो शेयर नहीं किए जाते थे, उन लोगों को समाज से थोड़ा अलग रखा जाता था। इसी वजह से विटिलिगो लोगों को लेकर के इतना ज्यादा फियर हमारे समाज में रहता है, जिसकी वजह से आज भी अगर एक स्पॉट आया, और खासकर अगर वो लड़कियों में आ गया, तो पूरा घर, पूरा आस पड़ोस सब परेशान हो जाते हैं। हमारे पास आते हैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट लेकर के कि डॉक्टर साहब ये बच्ची है, बस आप इसको देख लो, लड़की है, अगर इसको ये सफेद दाग की बीमारी हो गई तो इसका क्या होगा, शादी नहीं होगी। मतलब वो जो पेशेंट है, वो लड़की है, वो परेशान नहीं हो रही है, लेकिन उसके ऊपर जितना प्रेशर या उसके साथ इतना प्रेशर है कि वो पेशेंट को शायद कुछ टाइम के बाद ही अपने आप को दबाव में ले आता है, और पेशेंट जनरली ट्रीटमेंट पे भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो फैमिली सपोर्ट, उसकी काउंसलिंग, उसका जो बिहेवियर ट्रीटमेंट है, ये होम्योपैथ को बहुत अच्छे से आता है, और हम सब लोगों को यूज करना चाहिए। जनरली जो अच्छे एलोपैथी फिजिशियन है वो भी इस थ्योरी को ज्यादातर सपोर्ट करते हैं, और ज्यादातर अच्छे डॉक्टर्स एक विटिलिगो के पेशेंट की बहुत अच्छी सी काउंसलिंग भी करते हैं। नो, अब बात आई डाइट की। अभी डॉक्टर अभिषेक ने जो क्वेश्चन पूछा कि खट्टा नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, सफेद रंग की चीजें नहीं खानी है, ऐसे बहुत सारे मिथ है। बहुत सारे मिथ हैं। जब हमारे होम्योपैथी में बात करते हैं तो हमारी होम्योपैथी में भी पहले ये कहा जाता था कि कच्ची प्याज नहीं खानी है, आपको बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें नहीं खानी है, आपको बहुत ज्यादा स्मेल वाली चीजें नहीं लेनी है, आपको परफ्यूम्स वगैरह यूज नहीं करने हैं। तो ऐसा हम सब लोगों के साथ होता है। और जब हम लोग पढ़े होते हैं तो हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि होम्योपैथी के साथ ये परहेज करो। लेकिन एक बात बताओ कि अगर मान लो किसी भी चीज को आप परहेज करके ठीक कर दोगे, तो फिर उसमें मेडिसिन का क्या रोल रह गया? बेशक डाइट का एक अच्छा सा रोल होता है, लेकिन आपको डाइट में सिर्फ वही चीजें बंद करनी है जिससे उसको कोई दिक्कत हो रही है। मतलब अगर किसी वजह से उसको डेली प्रोडक्ट की से कोई एलर्जी है, या डेली प्रोडक्ट से उसके स्पॉट बढ़ गए हैं, तो आपको डेली प्रोडक्ट बंद करने हैं, वरना नहीं करना है। कोई भी ऐसी चीज जो उसको सूट नहीं कर रही है, मतलब जैसे अभी डॉक्टर अभिषेक ने अचार की बात करी या नींबू की बात करी, अगर उसको नींबू लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर आप उसका नींबू क्यों बंद करा रहे हो? मुझे बताओ, होम्योपैथी के ऐसे लिटरेचर में कौन सी ऐसी मेडिसिन में लिखा है जहाँ पे नींबू बंद कराना? आयुर्वेद की मेडिसिन में लिखा है हाँ नींबू बंद कराना है, वहाँ पे खटाई नहीं देनी। आयुर्वेद की मेडिसिन में लिखा है कि हाँ डेली प्रोडक्ट नहीं देने। तो हमें देने हैं, लेकिन उन्हीं पेशेंट को देख करके, अगर आपको लगता है कि ओबेसिटी का पेशेंट है तो आप डेली प्रोडक्ट बंद करो, क्योंकि उसको ऑलरेडी ओबेसिटी है और ज्यादा खराब होगा। ठीक है, ऐसी सप्लीमेंट्स में आपको विटामिन डी का ध्यान रखना है, विटामिन बी 12 का ध्यान रखना है, अच्छी चीजें खाने के लिए बोलना है। हाँ, इसके लिए मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ कि आपको एक अच्छी चीज खानी है। आपको वही जो मैंने अभी जंक फूड के बारे में बताया था, जंक फूड को कैंसिल करना है, आपको प्रिजर्वेटिव्स को कैंसिल करना है, आपको ऐसी चीजों को कैंसिल करना है जहाँ पे केमिकल्स मिले हुए हैं। अच्छी चीजें खाओ, लेकिन कोई चीज बंद नहीं करनी। हाँ, नींबू में अगर ऐसा कुछ है कि उसको नींबू से एलर्जी हो रही है, उसका नींबू से गला खराब हो रहा है, उसको नींबू से जॉइंट पे पेन हो रहा है, या नींबू लेने से उसको दिक्कत हो रही है, तो आप नींबू बंद कराओ। अगर नींबू से कोई दिक्कत नहीं है तो विटामिन सी तो स्किन में और ज्यादा हेल्प करता है, कहीं ना कहीं वो यूजफुल हो सकता है। तो कभी भी किसी भी स्ट्रिक्टली कोर्सेज में, जो डाइट के स्ट्रिक्ट कोर्स है, उन पे ना जाकर के जो उनके केमिकल्स हैं सिर्फ उनको बंद कराओगे ना, तब भी बहुत हद तक रिस्पॉन्ड कर जाएगा। अब बताइए कि आप विटिलिगो के पेशेंट को कब ये कहोगे कि हम ट्रीटमेंट लेंगे या नहीं लेंगे? तो हाँ, उससे पहले ये बात और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर आप ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बारे में बात करोगे, तो जो विटिलिगो के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं वो है एक्सीडेंट्स, या ऐसी हिस्ट्री जिसमें कहीं एक्सीडेंट्स इंक्लूड हो, या किसी लव्ड वन की डेथ, या कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ हो, असॉल्ट हुआ हो, या कोई लड़ाई हुई हो। ये लड़ाई किसी भी प्रकार की हो सकती है। अगर आपने सिर्फ इन्हीं 4-5 चीजों में से, क्या क्या है, नंबर एक, तो कोई एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कोई ट्रक से मार के चला गया,
सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है, एक्सीडेंट का मतलब भी बहुत कुछ है। डेथ ऑफ लव्ड वन दूसरा सिम्टम, तीसरा है नेचुरल डिजास्टर, चौथा है असॉल्ट, और पांचवा है वार। अगर आपने सिर्फ इन पांचों में से ही कोई एक चीज को ढूंढ करके बाहर ले आए, तो भी आपका विटिलिगो का पेशेंट ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, अभी जो मैं बता रहा था कि विटिलिगो का पेशेंट आप लोगे कब, मतलब कब आपको लेना चाहिए, और कब आप ये श्योर कर दोगे कि हाँ हम पक्का ठीक करेंगे, हम क्योर करेंगे, और कब ये कहोगे कि हाँ हम कुछ देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जितने भी ऐसे केसेस हैं जो 1 ईयर के अंडर अंडर आए हैं, मतलब ऐसे केसेस जिन्होंने कोई बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं लिया है और सिर्फ 1 साल पुराना है, आप उसको 99.9% की वारंटी लेकर के भेजो कि हाँ हम आपको ठीक करेंगे। लेकिन आपको एक कॉज निकालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने गारंटी ले ली और आप चुपचाप बैठ जाओ और सिर्फ मेडिसिन दे दो और कहो कि काम हो जाएगा। 1 साल से जितना जितना पुराना होता जाए, ये परसेंटेज, इसमें से 10% माइनस करते चले जाओ। जैसे 2 साल आएगा तो वो 89% हो गया, 3 साल का पुराना है तो वो 79% हो गया, 4 साल का है, और जहां तक आपको लगता है कि 10 साल पुराना है तो बस आप उसका सिर्फ ट्रीटमेंट करते रहो। जब ठीक होगा तब रिस्पॉन्ड करेगा, कुछ भी नहीं होगा। एक छोटा सा फॉर्मूला है, जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है उसके फॉर्मूले हैं, मैं आपको किसी कोई किताबी भाषा नहीं बता रहा हूँ। ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है विटिलिगो लिकोडर्मा के ऊपर, और ये जो परसेंटेज है ये भी मेरी अपनी बनाई हुई है। तो इस पे कोई मैं क्लेम भी नहीं करता, हो सकता है कि मेरा कोई डाटा गलत हो या मैं इसको ठीक ना कर पाया ना। तो मैं आज आपको वो चीजें दे रहा हूँ जो मेरा एसेंस है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने केसेस को ट्रीट किया है। तो ये जो 5 चीजें मैंने बताई हैं, सिर्फ इन 5 चीजों पे गौर करो, यहीं से ही सब कुछ निकल जाएगा। आपको इसी में से ही सब कुछ निकाल कर लेना है। और जो एक्सीडेंट्स की बात है, एक्सीडेंट्स की बात है, तो पीटीएसडी आपने सुना ही होगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं ट्रक से एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सड़क पे गिरने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि पीछे से कोई मार गया। पीटीएसडी एक टर्म है, आप सिर्फ इसको यूज करो, यहाँ से निकालो। डेथ ऑफ लव्ड वन, नेचुरल डिजास्टर, असॉल्ट और वॉर, सिर्फ इतनी हिस्ट्री अगर आप लोगे तो भी आपकी मेडिसिन जो है क्लियर हो जाएगी। प्लस जो सबसे मेन चीज है, इनके बाद जो आता है वो आता है फियर। ये 5 वो सिम्टम्स हैं जो इसने एच को कॉज किया होगा, और ये फियर वो सिम्टम है जिस जो इस डिजीज को और ज्यादा बढ़ा रहा होगा। तो इन सिर्फ 5-6 लोग चीजों पर काम करना है, इसके अलावा जितनी भी थ्योरीज है, घूम कर जाओगे तब भी मेडिसिन वही निकलेगी, इन बार आ जाओगे तो भी मेडिसिन वही निकलेगी ना। अब एक क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए, इसके मैं आराम से 4-5 मिनट लूंगा आपसे। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जो मेरे क्लिनिक के कंसल्टेंट हैं, इसके अलावा जो भी मेरे स्टूडेंट हैं जो इस कोर्स के लिए नए हैं, वो मुझे बताएंगे कि जो भी मैंने आपको टाइप्स बताई हैं अभी, उस टाइप में से ये कौन सी टाइप का विटिलिगो है। चैट में आंसर करिए, माइक ओपन कर सकते हो, आराम से 2 या 3 मिनट है सबके पास। अगर आप कहते हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ स्लाइड्स, लेकिन इन स्लाइड्स को गौर से देख करके बताइए कि किस टाइप का विटिलिगो है जो भी मैंने टाइप्स बताए हैं। अगर नहीं बता पाओगे तो मुझे लगेगा कि जो मैंने समझाया वो शायद बेकार था, या वो समझ में आया नहीं। सर थर्ड पिक्चर तो फोकल लग रही है। जी, एक ही पेशेंट है सर, एक ही पेशेंट है। अच्छा एक ही पेशेंट है। हाँ एक ही पेशेंट है, उसी का हाथ है उसी का पैर है। गुड अभिषेक, तुमने कुछ अटेम्प्ट तो किया, और कोई? लिखिए, जो भी समझ में आ रहा है वो लिखो। मोहम्मद मुजम्मिल सर, आपको लिखना चाहिए।
हेलो नेवी और सेगमेंटल डॉक्टर शानवी, गुड। डॉक्टर साक्षी, हेलो नेवाई, गुड। और कोई? सेगमेंटल है सर। सेगमेंटल, आपका नाम सर? डॉक्टर अमोद? डॉक्टर अमोद पांडे। जी। अच्छा, डॉक्टर अमोद की तरफ से सेगमेंटल, और बाकी लोग भी तो बताएं। देखिए, गलती तो होगा, आप बताओ ना। डॉक्टर अभिषेक ने लिखा है सेकंड पिक्चर पिंक कलर इज सीन मोर। मोहम्मद मुजम्मिल सर ने सेगमेंटल, थैंक यू सर। और कोई? मैं बताता हूँ, आप इस केस में फिर से वही गलती कर रहे हैं जो शायद मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, और जिस चीज के लिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ आप लोगों को। फिर से आप लोग सिर्फ व्हाइट पैचेस को देख करके विटिलिगो पे चले गए। ऐसा ही है ना? कोई सेगमेंटल बता रहा है, कोई हेलो नेवी बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है। क्योंकि हमें फिर भी वो ध्यान रखना है कि आखिर ये है क्या चीज। हमें परफेक्ट डायग्नोसिस की तरफ मूव करना है। जब ये मेरे पास पेशेंट आया, और मेरे पास भी बस इसीलिए ले आया कि डॉक्टर साहब मेरी हालत खराब है, इतने सफेद दाग हैं, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया हुआ है, बचपन से ऐसा है, 15 साल से ये दिक्कत है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। इस समय तकरीबन 15 सालों से स्टेरॉयड पे है बंदा, लगभग 42 ईयर की एज है। और किसी में एक्सीडेंटल कॉज, वो डॉक्टर श्वेता, बहुत अच्छे। सर इसके थर्ड पिक्चर में थोड़ी सी मतलब वो इचिंग या डर्मेटाइटिस पैचेस भी दिख रहे हैं, मतलब हाँ, मैं कुछ डर या सेकेंडरी। खुजली, इन्फ्लेम्ड पैचेस लिख रहे हैं साथ साथ, हम्म। थर्ड वाली पिक्चर। गुड, अब अच्छा ऑब्जर्वेशन करना शुरू करा। चलो, अब तो मैंने हिंट दे दिया, अब और कोई बताओ। स्किन इन्फेक्शन और केमिकल बर्न। कौन से सर? केमिकल बर्न। केमिकल बर्न, गुड ऑप्शन। और देखो, मैं इस पिक्चर में जो आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, वो सबसे मेन है इसके नेल्स। जो आपके इसके हैंड में देखोगे ना, जो इसकी मिडिल वाली पिक्चर है, तो इसके जो नेल्स है ना, वो गायब होते जा रहे हैं। एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा। बहुत ही रेयर इनहेरिटेड स्किन डिसऑर्डर है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये स्किन के जितने भी पार्ट है उन सबको डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। अब फिर से आपको एक जगह चलना चाहता हूँ। आप लोगों ने एक चीज इसकी नोट नहीं करी, वो क्या है? इसकी सिमेट्री। इसको किसने नोट किया? आप देख रहे हो कि जैव पैटर्न लगभग राइट पे है, वही पैटर्न सिर्फ लेफ्ट पे है। ऐसी लेफ्ट एल्बो, ऐसी दोनों हाथों के पैटर्न देखोगे तो लगभग लगभग सेम है। तो इसकी कौन सी मेडिसिन होती है जहाँ जो बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है? आने का सबसे फेवरेट रेमेडी है ना? लेकिन क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे जो जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट है, जो जीन है, वो बिल्कुल परफेक्टली ऑफ हो गया है, जिसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब मेरे पास ये पेशेंट आया तो मैंने सिर्फ इसको इतनी होप दी है कि आप दवाई लेते रहो, दवाई लेते रहो। मैं आपको सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि जो आपके स्टेरॉइड्स की डोजेज हैं, मतलब जो वो स्टेरॉइड्स इस समय ले रहा है, उससे भी कम डोजेस करा दूंगा। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको कोई नया पैचेज नहीं आएगा, आपकी जो प्रोग्रेशन है वो कहीं नहीं होगी। सिर्फ इतना श्योर कर पाया हूँ। तकरीबन कोविड से पहले मेरे पास 3 साल से पेशेंट है, और ये जो पिक्चर है, तकरीबन तकरीबन शायद एक हफ्ते पहले की है, और जैसे पहले था लगभग लगभग वैसे ही है। नया पैचेज नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं आई है। बीच में इसने कोविड के टाइम में थोड़ा सा ट्रीटमेंट छोड़ दिया था, लेकिन उस ट्रीटमेंट से कोई दिक्कत नहीं आई, उससे उसके स्टेरॉइड की डोज नहीं बढ़ी। ये पेशेंट आज सिर्फ मेरे पास इसलिए खुश है कि मैंने इसकी स्टेरॉइड की डोजेज नहीं बढ़ने दी पिछले 15 सालों में, नहीं तो इसकी स्टेरॉइड की डोजेज जो है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। इसका जो लीवर है वो इन्फेक्टेड हो गया था, जो एंजाइम्स थे वो डिस्टर्ब हो गए थे। तो पिछले 3 सालों के अंदर ना तो हमने इसके लीवर के एंजाइम को बढ़ने दिया है, ना इसके डिजीज के पैचेस को बढ़ने दिया है, ना ये हमने इसके किसी और चीज को बढ़ने दिया। और पेशेंट बहुत हैप्पी है। लेकिन मैंने उसको बिल्कुल क्लियरली कह रखा है कि ये पैचेस जाएंगे नहीं। मैंने कभी भी इसको ये अश्योर नहीं करा कि आपके पैचेस मैं गायब कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो डैमेजेस होना था
वो 100% हो चुका है। और जैसा कि मैंने अभी आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया कि जहाँ 10 से लेकर 15 साल के बीच का कोई केस आ जाए तो आपको सिर्फ उसको इतना ही एश्योर करना है कि सर हम आपके शायद इस पैचेस को बढ़ने ना दें। अगर आप सिर्फ इतना भी कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड एक ट्रू क्योर। क्योर का मतलब ही नहीं होता कि हम उस बीमारी को, हम या उस व्यक्ति को उससे 20 साल पहले ले जाए। जब मैं आपको थायराइड एफोरिज्म के बारे में पढ़ाऊंगा, जब हम न्यास की बात करेंगे, अगले जो नेक्स्ट सेशन है डॉक्टर पंकज अग्रवाल सर का है, ऑर्गेनम के ऊपर वो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उसमें मैं भी एक आपको थर्ड एफोरिज्म पढ़ाऊंगा। तो थर्ड एफोरिज्म में डॉक्टर हैनीमैन सर ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि क्योर क्या है और क्योर क्या नहीं है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। आप सब लोगों को एक ही बात सिखाना चाहता हूँ कि होम्योपैथ होने से पहले डॉक्टर बनना सीखो। जैसे डॉक्टर हैनीमैन सर पहले एक डॉक्टर थे, उसके बाद वो होम्योपैथ बने। हम लोग क्या करते हैं कि पहले होम्योपैथ बन जाते हैं और बाद में कोशिश करते हैं कि हम लोग डॉक्टर बने। तो बहुत ऐसा नहीं कि स्किन सिर्फ ये 3 महीने का कोर्स है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आज देखो ना, सिर्फ एक विटिलिगो पे हमें इतना टाइम लग गया है। अभी तो सोरियासिस है, अभी स्किन के एक्जिमा हैं, अभी तो बहुत सी डिजीज बची हैं। तो सिर्फ 3 महीने का कोर्स नहीं है, स्किन और भी बहुत कुछ है। हमें हर पहलू को समझना है। जो केसेस ना समझ में आए उसमें हमेशा हेल्प लेने की कोशिश करो। हर केसेस में ऐसा मत समझो कि मैं ठीक कर लूंगा, मैं ठीक कर लूंगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको स्किन की डायग्नोसिस, स्किन की अंडरस्टैंडिंग और उस मेडिसिन तक पहुंचने का तरीका वो जरूर आना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफी है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग डॉक्टर पंकज अग्रवाल से सीखेंगे कि हम सर लोग सर ऑर्गेनिक को सर कैसे यूज करेंगे। सर जी। जी अभी आ रहे हैं सर क्वेश्चन आंसर पे। तो जी आज जी। जो जो मैंने आपको विटिलिगो के बारे में बताया, होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ रह गया तो हम लोग यहीं पर हैं आपके लिए, अगर 15-20 मिनट तक, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, हम लोग यहीं पे ही रहेंगे। हाँ, आप पूछना शुरू करिए। जी। आपने कहा फेयर को जी। ढूंढना है, जी। रिपर्टाइज करना है, तो हम्म। विच टाइप ऑफ फेयर? हाँ गुड सर, वही fear तो of disease, देखो fear of मैंने, disease, fear of, जी नहीं, फियर ऑफ इंसल्ट, या ये है ना, कि मेरी यस कोई इंसल्ट ना कर दे, मुझे देख करके कोई मुंह ना फेर ले, मुझे देख करके कोई मुझसे खाना खाएगा कि नहीं, मुझे देख करके कोई मेरे पास बैठेगा या नहीं। अभी भी हो सकता है कि जो एजुकेटेड लोग हैं ना, वो भी शायद अगर कोई लिपोडर्मा का या विटिलिगो का पेशेंट देख लें और उसके फेस पे विटिलिगो है, तो वो उससे दूर यस बैठने की सर, कोशिश करता है। ये एजुकेटेड परिवारों में भी ऐसा ही यस सर, यस सर। है ना। सर आप सेकेंड देखिए। वन, जी। कोई बच्चा है जी। 8 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का, इस समय मेरे पास एक पेशेंट है 10 महीने का, और उसकी जी। सेनाइटल और थाई वाली एरिया में जी। है, वो है। हाँ। तो उस केस को हम कैसे करेंगे, या रिपेट्राइज कैसे करेंगे? नहीं, उस केस का अभी मेन सिम्टम क्या आ रहा है सर? सर ल्यूकोडर्मा ही है, व्हाइट पेजेस अच्छा। मैं शेयर कर दूंगा आपको, जी। बट कैसे कई इस टाइप के बच्चे मिलते हैं या पेशेंट हैं इस टाइप के, तो हाँ कैसे हम उनकी मतलब सर, मैंने बताया कि जो रिकॉर्ड सबसे पहले तो ये डायग्नोस करो कि वो ल्यूकोडर्मा जी है या कोई और जी, बीमारी है या विटिलिगो है। अगर मैं आप शेयर चिल्ड्रंस की करूंगा बात आज आप। करोगे, हाँ अगर आप जी चिल्ड्रंस की बात करोगे, तो चिल्ड्रन के अंदर सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जो है वो है डी वर्मिंग की या वर्म्स के इन्फेस्टेशन की, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा व्हाइट स्पॉट आते हैं। दूसरा कारण है कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना। तीसरा कारण यस है सिर्फ जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो होना। तो हमें किसी भी पैचेज में सबसे पहले ये क्लियर करना है कि आखिर वो जो पैच है वो किस कॉज की वजह से है। जैसे मैंने बताया कि ल्यूकोडर्मा फिजिकल कोई कॉज है, और जो अगर विटिलिगो है तो कोई मेंटल स्ट्रेस है। अब वो मेंटल स्ट्रेस उस बच्चे पे कैसे आ गई वो पता करना है। तो जब जी तक आप जी उसकी हिस्ट्री पे नहीं जाओगे ना सर, तब तक जी 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 हम सिर्फ उस स्पॉट को थोड़े टाइम के लिए लाइट कर सकते हैं या गायब कर सकते हैं। अगर हमने जी क्योर की तरफ नहीं गए तो फिर इसका मतलब वो रिवर्स हो जाएगा, कहीं ना कहीं और लेकर के आएगा। थैंक यू। जी हाँ, डॉक्टर अभिषेक ने पूछा है, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो शायद मेरे से स्किप भी हो गया, कि पिक्चर्स वर्सिकोलर और विटिलिगो में क्या डिफरेंस है। तो सर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि नंबर जो पिटियसिस के स्पॉट्स हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं। एक तो स्मॉल होते हैं, पैचेस में फैले होते हैं। दूसरी बात, आप जब भी उसके डिमार्केशन देखेंगे तो उसके जो पैचेस होंगे वो प्योर
व्हाइट नहीं होंगे, वो या तो कुछ पेल होंगे या कुछ रेड कलर के होंगे, और आसपास आपको उसके कहीं ना कहीं रेड कैपिलरीज के साइंस दिख जाएंगे। दूसरी बात, ये पैचेस इचिंग कर सकते हैं, विदाउट इचिंग भी हो सकते हैं। इसका भी कारण सबसे पहला जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी का, या फिर किसी स्किन की इन्फेक्शन होने का, या फिर वॉर्म्स का होने का है। तो जब भी कभी ऐसे केसेस आए पिटियासिस जैसे, तो हमेशा एक डीवॉर्मिंग की तरफ हमें जरूर सोचना चाहिए, जिसमें जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है सिनार, दूसरी मेडिसिन है सल्फर, तीसरा है बोरेक्स। ये तीन ऐसी मेडिसिन है जो हमारे लिए डीवॉर्मिंग का काम करती हैं। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है, कुछ जी पेशेंट्स को जैसे हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में जी ऑयल बाउची कहते हैं जी लगाने के लिए, पिगमेंटेशन जी। के लिए, चाहे वो 2 years पुराना हो या ऐसे। अब हम्म, उसमें कई पेशेंट्स कहते हैं कि हमें बहुत इचिंग होती है इसके बाद, लगाने के बाद। जी। हम कहते हैं कि ऑयल बाउची को थोड़ा सा लगा के जहाँ अफेक्टेड एरिया में धूप में हम्म, बैठ जाओ या पीट करके बैठ जाओ थोड़ी देर, तो हम्म, आपको इफेक्टिव रिपिगमेंटेशन होगी। तो होम्योपैथी नहीं, वो कहीं आयुर्वेदिक में भी या कहीं और से तेल बनवा के लाते हैं, हाँ, बाउची का ही ऑयल होता है। तो हम्म। उसको हम कैसे कम्बैट करें कि भाई उस इचिंग को या ऐसे कोई, पर उससे देखो रिपिगमेंटेशन होती है। देखो डॉक्टर अभिषेक, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी हम होम्योपैथी में एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान देना होता है कि हमें जो एप्लीकेशन करना है वो इंटरनल मेडिकेशन के साथ साथ करना है। मतलब ऑर्गन ये कहती है कि अगर आपकी मेडिसिन जो है वो सल्फर निकल के आई, तो आप सल्फर जो है 30 पोटेंसी में दे रहे हैं, तो आप उसका सल्फर का कोई भी ऑइंटमेंट या उसकी मदर टिंजर को ऑयल में मिक्स करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सल्फर का तो इंटरनल मेडिकेशन किया और कैंथेरी से आप ऊपर से अप्लाई करा रहे हो। दूसरी बात कि बापची एक बहुत कॉमन ऑयल है जो बहुत फेमस है मिलेनोसाइट्स की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इसके जो प्रूफ है वो अभी भी इतने डैमेज हैं कि वो कहते हैं कि अगर हमने स्किन को बिल्कुल नीचे तक जला दिया तो हो सकता है कि एक नई स्किन आ जाए। मतलब जो उनकी थ्योरी कहती है, मैंने एक आयुर्वेद के डॉक्टर से बात करी थी, वो ये कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि पहले जो है ना पूरी स्किन के ऊपर की लेयर को जला देते हैं, उसके बाद हो सकता है कि नई स्किन जब आए तो वो नई सेल्स के साथ आ जाए। फिर मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसके लिए जो मैंने पहला लेक्चर लिया था जिसमें मैंने एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में डिफरेंशिएशन पैदा किया बताया था, तो हमें ये सोचना है कि सिर्फ पूरे एपिडर्मिस पूरी डर्मिस में सिर्फ मेलानोसाइट के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो डिस्ट्रॉय हो गई। और भी तो बहुत सारी सेल थी जो डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए थी, वो क्यों नहीं हुई? सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स को लेकर के मेलानोसाइट वो भी कुछ पार्ट्स पर जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऐसी क्या केमिकल कंपोजिशन आई होगी? अगर मैंने कह दिया कि फियर भी आया होगा, या मैंने कह दिया कोई सेपरेशन हुआ होगा, या मैंने कह दिया कोई एक्सीडेंटल हुआ होगा, तो सिर्फ एक पार्ट में क्यों? फियर तो पूरी बॉडी में एक साथ रिएक्ट करना चाहिए था। तो हमेशा ध्यान रखो कि ये सिर्फ वही हो सकता है जो सबसे बॉडी का वीकेस्ट पॉइंट होगा। समझ रहे हैं कि राइट लेफ्ट या किसी एक स्पॉट का मीनिंग ये है बीमारी होने का कि हो सकता है कि सिर्फ ये स्पॉट वीक था तो ये जल्दी हर्ट हो गया, तो हो सकता है दूसरे स्पॉट मजबूत थे वो ठीक रह गए। तो सिर्फ मेलानोसाइट का डेवलप जो ओरिजिन है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस पूरी लेयर को डैमेज करो और उसके बाद एक नई सेल बन के आ जाएगी। वो हो सकता है कि कुछ तुक्के लगते हों और हो जाते हों ठीक, वरना बापची ऑयल भी लगाते 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 हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, आपके पास भी आते होंगे कि हमने जी बापची ऑयल तो लगा ही लिया, अब इसके अलावा बताओ। तो मैंने आपको एक थ्योरी दी थी, अभी एक कमेंट्स बताया कि कहाँ के विटिलिगो ठीक हो सकते हैं और कहाँ के विटिलिगो ठीक नहीं हो सकते, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि टंग का एरिया है तो आप बापची लगवाओ, चाहे अपनी सल्फर लगवाओ, चाहे अपनी कैंथेरिस लगवाओ, चाहे आप अपनी कोई और मदर टिंचर लगवाओ, हो सकता है ना ठीक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर जो हैंड के हैं वो डिफिकल्ट है, क्यों डिफिकल्ट है? आप लोग इसको फिजियोलॉजी को पढ़ना दोबारा से कि हैंड के डिफिकल्ट क्यों है। जब फेस का ठीक हो सकता है, टंग का ठीक हो सकता है, तो फिर हैंड की क्यों नहीं होगी? इसके बारे में बार मैंने बार, नेक्स्ट। हेलो सर, बार बार इंजरी होने के कारण, कौन सी है? बार बार चोटें लगती है, इंजरी होती रहती है, हाँ। इस कारण ही ठीक हो पाते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जी ऐसा नहीं है, हाथों में क्या इंजरी होगी? बस साबुन ही तो लगाओगे, जी जी जी। है ना।
तो फिर भी मैं एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, अगर नेक्स्ट वीक को पूछूंगा और अगर नहीं आप बता पाओगे तो मैं आपको बताऊंगा, उसकी आप सर टेंशन मत लेना, लेकिन फिर मैं चाहता हूँ कुछ पढ़ो। जी, डॉक्टर मीनू बताइए। सर आपने कहा कि मेलानोसाइट वहाँ के डिस्ट्रॉय होते हैं जो वीकेस्ट पॉइंट जी है ना? सर अगर अब बिल्कुल। बॉडी में आप सब चीज खा रहे हैं प्रॉपरली, वो पूरी बॉडी में जा रही है, जी तो मतलब कोई ऐसा पॉइंट क्यों डेवलप हो जाता है कि उसको प्रॉपर या तो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है या क्या हो रहा है, जो उसी साइज के मतलब उसी साइट के आपके मेलानोसाइट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जी। इसका क्या रीजन है? अच्छा डॉक्टर साहब कहाँ रहते हैं आप? सर वैशाली, वैशाली गाजियाबाद। में ना? तो आपने वैशाली का एरिया देखा है? आपने हम्म। उसके बगल में जब दिल्ली में एंटर करते हैं तो आपने गाजीपुर भी देखा है, आपने आनंद विहार भी देखा है, यस सर। आपने सैफाबाद भी देखा है ना? हम्म। है तो सब दिल्ली एनसीआर के एरिया, हम्म। लेकिन फिर भी कुछ जगह झगड़े ज्यादा होते हैं, कुछ जगह कम होते हैं, कुछ जगह गंदगी ज्यादा है, कुछ जगह गंदगी कम यस सर। है ना? तो हाँ इसका कोई जी। कॉज है? जबकि नियम सबके लिए एक है। कहीं हाँ। ट्रैफिक का जाम ज्यादा मिल रहा है इन एरिया में, मतलब आपकी वैशाली वैशाली में ही बहुत सारी हम्म। रोड ऐसी हैं जहाँ पे बहुत जाम मिल रहा है, बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ कोई जाने को भी तैयार नहीं है। तो हम्म। सेम चीजें हमारी बॉडी के साथ भी ऐसे ही होता है। हम ओके बस सर। सोच नहीं पाते, लेकिन हमारी हर एक थिंग, हमारा हर एक थॉट प्रोसेस हमारी सेल्स को ये डायरेक्शन देता है कि आज आपको कहाँ पे काम करना है। सोचो क्यों एक आदमी को लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस हो रहा है, एक को राइट साइडेड पैरालिसिस हो रहा है। एक एक पेशेंट हमारे पास आ रहा है जो सिर्फ राइट साइड का विटिलिगो लेकर के आ रहा है, एक साइड जो लेफ्ट का लेकर के आ रहा है। तो सिर्फ हमारी बॉडी में भी ऐसे ही चलता है जैसे हमारी सिटीज में ट्रैफिक चलता है बस। अगर आपको ये जानना है तो फिर इसके लिए आपको फिर से एक बार फिजियोलॉजी पे जाना पड़ेगा। मतलब मेरी गाइडेंस जो है बहुत फेवरेट है, हर 3 महीने में मैं उसको रिपीट करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एक बार उठा करके पढ़ो जरूर। सर व्हाट यू हैव टू रीड? गाइडन, गाइडन जो पैटर्न। फिजियोलॉजी है। ओके सर, जी, थैंक यू। ये सबसे फेवरेट है। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? डॉक्टर मानवी, एपिडर्मोलाइसिस मैंने बताया था, जेनेटिक इनहेरिटेंस है बस, और कुछ नहीं। जीन्स में कहाँ जीन ऑफ हो गया कहाँ ऑन हुआ कुछ नहीं पता, कोई कॉज नहीं है। इस आदमी को कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है, कोई भी जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है इस बंदे की, फिर भी इसको है। हमने बहुत सारी हिस्ट्री ले ली है, इसको 3-3 4-4 घंटे भी हमने बैठा कर रखा है। कभी कभी मैंने इसको ऐसे टाइम पे बुलाया जब मेरा लंच का टाइम होता है, जब मैं फ्री होता हूँ, तो मैंने इसको बुला लिया, मैंने कहा चलो आ जाओ यार बात बात करते हैं। मैंने उसको कई घंटे मैंने इसको काउंसलिंग की है। और आज हमने ये कर रखा है कि जब हमारी तरफ से रेस्पॉन्ड नहीं करती तो हमने कहा कि तुम्हारी मेडिसिन के भी कोई चार्जेस नहीं है, बस लेते रहो, क्योंकि मुझे इतना पता है कि हम आपके स्टेरॉइड की डोज नहीं बढ़ने देंगे, हम आपकी बीमारी को बढ़ने नहीं देंगे, इतना भी श्योर। डॉक्टर साक्षी गर्ग इस समय जो यहाँ पे हैं, वो इस केस को हैंडल कर रही है फिलहाल। जी, और कोई क्वेश्चन? डॉक्टर शिल्पी से कोई क्वेश्चन हो? ये बिल्कुल ओपन सेशन है। वैसे डॉक्टर शिल्पी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो उनका तो सबको समझ में आ गया होगा। विटिलिगो के बारे में भी बहुत सारी बातें रह गई हैं, मैं बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ विटिलिगो की बात करें तो हमें कम से कम 5-6 घंटे चाहिए। अभी हम इनकी मेडिसिन तक नहीं पहुंचने हैं, अभी हम ये जो 5 कॉजेज जो मैंने लिखे हैं इसको बार बार रिपीट करना, बार बार इसको देखना, हर एक पेशेंट जब भी आ जाए तो यही वाली स्लाइड खोल करके बैठ जाना। सिर्फ इन 5 चीजों पे काम करना है, बस इसी में आपको मेडिसिन मिल जाएगी। कुछ घुमा फिरा के पूछने की जरूरत ही नहीं है आपको, जेनेटिक्स की भी जरूरत नहीं है, जेनेटिक हिस्ट्री की जरूरत नहीं है, बस ये 5 चीजों में से निकाल लेना। सो थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर थैंक शिल्पी। थैंक सर। जी, Thank you, everyone. Thank you, sir. थैंक यू डॉक्टर शानवी। डॉक्टर शिल्पी मीटिंग एंड कर दें, कोई हाँ और जी, नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन? नहीं कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सभी लोगों को, नमस्कार, अपना अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करो बस थोड़ी सी। थैंक यू।